Hey guys, hi. Am I clearly audible, everyone? Okay, I'm gonna check your comments too. So, very good evening to all of you. I am Anjali Ahuja here again to talk about a lot of new things that I always do. Today, we are going to discuss the topic which is biomolecules. अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में नीट की नहीं या कोई भी आप बायो से रिलेटेड अगर टॉपिक लें एंट्रेंस एग्ज़ाम लें तो बायोमोलिक्यूल इज समथिंग वेयर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कैन कम बायोमोलिक्यूल दैट इज ऑल्सो इन योर 12th क्लास केमिस्ट्री दैट इज ऑल्सो इन 11th एंड इसमें न्यूक्लिक एसिड टॉपिक ऐसा है जो मॉलिक्यूलर बेसिस 12th के चैप्टर में भी है सो मेनी थिंग्स विच आर कॉमन हियर एंड देयर सो द क्रक्स इज बायोमोलिक्यूल्स एंड अगर आप नीट पेपर की बात करें इनटू द नीट पेपर यू कैन हैव मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चन minimum I'm telling maximum you cannot expect on the basis of this thing. So today we are going to discuss the topic biomolecules and because it's a big chapter, so you know I always come here weekly, I just finish up the topic, I start a topic, so doesn't matter how many sessions it is going to take, not much, but we are going to continue this topic and today let's have a start of this. Where we end, let's see this, okay? So guys, let's start the topic biomolecules. Mr. India, this. Hold on guys, Mr. India, next करेंगे PPT. Okay. So first of all we have to understand, तो मैंने ऊपर लिख दिया है कि what are the types of biomolecule. We will be discussing what are biomolecules. तो when we read the word biomolecule, bio means life and molecules are the molecule. So all the molecules which are the reasons that we have life आर बायोमोलिक्यूल्स. हमारी बॉडी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. अगर मैं बात करूँ हमारे हेयर, नेल, स्किन, आइज, मसल, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन विच इज़ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी, राइट? सो गाइज हमारी बॉडी में सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, हम खाना खाते हैं, वी टेक कार्बोहाइड्रेट, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं एंड ऑल दीज आर बायोमोलिक्यूल्स, द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच आर द रीजन्स ऑफ लाइफ एंड इंक्लूडिंग नॉन ऑर्गेनिक, आई मीन इनऑर्गेनिक ऑल्सो. So I'll tell you the example though, organic and inorganic thing, but वो सब biomolecules में आता है, which are the reason that we are having a life. So biomolecules और एक और चीज़ जो सेल होती है उसमें बहुत सारे biomolecules हैं. I mean एक सेल में एक टाइम में 5000 reaction happen and all these molecules they are just reacting. Not only organic but inorganic. I'm stressing it up, reason being I'll tell you. So now the next question that arises is what are the types of biomolecules? So इससे पहले मैं start करूँ, let me read your comments. If there is a special comment other than hi, hello, let me just check. Hi Rafuddin, hi Dayal, hi Gaurav, hi Amartya, hi Rekha Shri, hi Ghaji, hi Sudarshan. So many people, nice. Good evening, very good evening. I hope आपकी studies सबसे अच्छी चल रही है. सम पीपल आर सेइंग दैट हम यहाँ पहली बार हैं, वी आर न्यू हियर ऑन इंस्टा सॉल्व, तो ऐसा बिल्कुल फील मत करना कि पहली बार हो, सब नया होने वाला है. जस्ट फील रिलैक्स, फील होम, आराम से पढ़ो. हम डिस्कशन कर रहे हैं, आपको कुछ डाउट होगा आप चैट बॉक्स में डाल देंगे, सो जस्ट फील वेरी कंफर्टेबल. ठीक है, हम मिलकर पढ़ाई करने वाले हैं. तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. सो बेसिकली गाइस देयर आर टू टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. वन इज द माइक्रो molecules and one is, I have not written the complete word, just understand, one is macromolecules. And this distinction of the molecules has been done on the basis of their molecular weight. Like micro molecule में आएगा जिसका molecular weight कम है, macro में आएगा जिसका ज़्यादा है. जैसे हमारी life मतलब we do have a life. So what are the reasons of life? So that thing. So that are the molecules that provide, yes, carbon dioxide is also one, H2O is also one, oxygen is also one, and even elements are there in our body now, they all are biomolecules. And they are micromolecules, less molecular weight. Now, let's get more technical and let's understand more example. Okay, I'm just rubbing it up. हाँ, मेरे को और भी example लिख रहे हैं तो मैं इसको rub कर रही हूँ. और अगर आपको लगता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं, प्लीज़ 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 नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये मत सोचना हम ऑनलाइन बैठे हैं कुछ देख रहे हैं, ऑनलाइन फ़ोन पे देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं. अपना नोट बुक रखो साथ में, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर ले करो, बिकॉज दैट्स यूजफुल फॉर यू. ओके, सो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में गाइस
जैसे हमारी बॉडी में होता है प्रोटीन, मैंने आपको एग्जांपल मेंशन किया था, तो प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, राइट। बट जो सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, अच्छा, जो प्रोटीन होते हैं इसका अगर हम ब्रेक करके देखें, इट इज़ मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, तो दिस इज अ माइक्रोमॉलिक्यूल। अमाइनो एसिड माइक्रोमॉलिक्यूल है, प्रोटीन मैक्रोमॉलिक्यूल है। बना प्रोटीन अमाइनो एसिड क्या है, बट कंस्टिट्यूएंट इज माइक्रोमॉलिक्यूल। तो अगर आपको मैं पढ़ाऊंगी ना तो ऐसे ही समझ लेना, मान लो मैं प्रोटीन टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो ऑब्वियसली अमाइनो एसिड भी पढ़ाऊंगी, तो वो हम साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे सब कुछ। अब जैसे हमारी बॉडी में होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए एंड आरएनए दे आर नोन एज न्यूक्लिक एसिड, द जेनेटिक मटेरियल। बट डीएनए और आरएनए जो है इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, डीएनए एंड आरएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है विच इज न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड का बना होता है ना, तो न्यूक्लियोटाइड है माइक्रोमॉलिक्यूल और जो न्यूक्लिक एसिड है वो है मैक्रोमॉलिक्यूल। इसके अलावा और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे कि है लिपिड, फैट, लिपिड। अब लिपिड किसका बना होता है, फैटी एसिड का बना होता है, या फिर उसमें क्या कहते हैं, फैटी एसिड होता है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल भी होता है, ये सब माइक्रोमॉलिक्यूल में आता है, ठीक है। और अब आपको मैं अगला एग्जांपल दूं तो कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, पता है कार्बोहाइड्रेट जो होता है 3 टाइप का होता है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पॉली मतलब मैनी, पॉलीसेक्राइड है वो होता है मैक्रोमॉलिक्यूल, और इसका मोनो और ओलिगोसेक्राइड है, मोनो एंड ओलिगोसेक्राइड है, ये होगा माइक्रोमॉलिक्यूल, ठीक है। सो वी जस्ट डू दीज ऑल थिंग ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो जब मैं आपको मैक्रोमॉलिक्यूल पढ़ाऊंगी, हम ये सब पढ़ने वाले हैं, जब मैं पढ़ाऊंगी तो इवेंचुअली इन चीज़ का डिस्कशन होगा ही होगा, तो इट मीन्स आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, राइट। तो गाइज दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल एंड मैक्रोमॉलिक्यूल और द बायोमॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ बॉडी। और आज हम प्रोटीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रोटीन अगर हम एज सच पढ़े ना तो काफ़ी लेंदी टॉपिक हो जाता है, और ये चैप्टर ही बहुत लेंदी हो जाता है, तो आई थॉट कि चलो प्रोटीन पढ़ते हैं, डीएनए आरएनए बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, तो ये चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, आज हम प्रोटीन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब आज हम प्रोटीन और अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है गाइस। चलो लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन क्लियर कर देते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो गाइस सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन है प्रोटीन की, अरे गायब हो जा। हाँ, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात, प्रोटीन एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब होता है चेन ऑफ मोनोमर सॉरी। तो चेन ऑफ मोनोमर मतलब बहुत सारे मोनोमर अब उसमें कनेक्टेड हैं। अब जो मोनोमर होते हैं पॉलीमर बनाते हैं, एंड पॉलीमर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, होमोपॉलीमर एंड हेट्रोपॉलीमर। होमोपॉलीमर मतलब कि सेम मोनोमर यूनिट है, हेट्रोपॉलीमर मतलब डिफरेंट उसमें यूनिट्स हैं, मोर देन 1 टाइप ऑफ मोनोमर। जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर, ठीक है। एक और चीज़, जो ये फिशर एंड हॉफमेस्टर है ना, इन लोगों ने बोला, ये एक बंदा नहीं है, इन लोगों ने बोला दैट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, जो मैं रिपीट कर रही हूँ, तो ये इसने बोला था, इन लोगों ने बोला था फिशर एंड हॉफमेस्टर में, ठीक है। दूसरी चीज़, कोलेजन एंड रुबिस्को। कोलेजन और रुबिस्को दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले प्रोटीन हैं। कोलेजन एनिमल्स में होता है, ह्यूमन में होता है, हम भी तो एनिमल हैं, हमारी स्किन में, टेंडन्स में, लिगामेंट में, बोन में, बहुत जगह होता है कोलेजन। रुबिस्को एंजाइम याद हो तो अभी पढ़ा है हमने रेस्पिरेशन वाले में, हाँ सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ होता है रुबिस्को, क्रेब्स साइकिल में, इफ़ यू रिमेंबर। तो रुबिस्को क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारा अमाउंट में होता है, और वैसे सेल के अंदर भी। तो पॉइंट ये है कि रुबिस्को इज ऑल्सो मोस्ट अबंडेंट इन प्लांट एज अ प्रोटीन, ठीक है। अब बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की। ये तो प्रोटीन का है थोड़ा, और मैं बता दूं प्रोटीन जो होते हैं हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स, एंजाइम, स्किन, हेयर, नेल, बोन्स, सेल मेम्ब्रेन, हीमोग्लोबिन, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है हमारी बॉडी का, समझे। हम प्रोटीन क्यों बोलते हैं, हमारी मम्मी की दालें खा लो अच्छी होती हैं, बिकॉज दे आर प्रोटीन, और स्पेशली बच्चों को बोला जाता है ऐसा क्योंकि दे मेक आवर बॉडी, ठीक है। अब प्रोटीन अमाइनो एसिड के बने होते हैं। नेचर में देयर आर नियर बाय 300 अमाइनो एसिड,
बट हमारी बॉडी में देयर आर 20 अमाइनो, मैं अमाइनो एसिड को ना ए लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इफ यू गेट कंफ्यूज। हमारी बॉडी में 20 अमाइनो एसिड ऐसे हैं विच आर द मैजिक 20 अमाइनो एसिड। हमारी बॉडी में ये जितने भी प्रोटीन बोले मैंने, दे ऑल आर मेड अप ऑफ दीज 20 अमाइनो एसिड्स। बाकी जो 280 अमाइनो एसिड हैं वो इन्हीं के डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दैट। अब गाइज ये तो थी हमारे अमाइनो एसिड की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। हम प्रोटीन पढ़ेंगे बट उससे पहले हम थोड़े से अमाइनो एसिड के दर्शन करेंगे। अमाइनो एसिड 20 अमाइनो एसिड कौन है, क्या है, कैसे दिखते हैं, क्या काम करते हैं, कुछ रिएक्शन करते हैं कि नहीं, ये सब कहानी अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। मैं आपके कमेंट्स पढ़ लूँ फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा हाय हेलो ही चल रहा है अब तक, ओके। रैप, अच्छा ठीक है, ओके। प्लीज़ टेल मी एनी बुक ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। स्पेसिफिकली अमर्त्य आपको बायोमोलिक्यूल्स की बुक जाननी है? बायोमोलिक्यूल्स की बुक मैंने जो करी थी स्टडी, मेरे पास लेहनिंजर की, मतलब ये तो मास्टर्स लेवल पे हो गया थी। स्पेसिफिकली तो मैं यही बोलूँगी कि इंडियन ऑथर्स की भी मिल जाएगी वैसे तो, कि आप 11-12 की बुक में से पढ़ सकते हो। डिटेल में चाहिए तो फिर लेहनिंजर तो बेस्ट बुक है बायोकेमिस्ट्री की एक्चुअल में वो। अब मुझे बायोमोलिक्यूल की कोई और बुक याद आएगी तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ड्रॉपर्स, अच्छा तुम हालचाल बांट रहे हो क्या? मैं पढ़ा रही हूँ। आई मैडम, क्या हाल है? मैडम तो बहुत अच्छी हैं। मैम कोलेजन के बारे में बताओ कुछ। बच्चे मैंने बताया ना, कोलेजन जो होते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं। अच्छा अभी बीएससी सेकंड पार्ट कर रहे हो आप अमर्त्या? बीएससी सेकंड ईयर में मैंने भी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा था। मेरे पास कौन सी बुक थी, मैंने लेहनिंजर के नोट्स पढ़े थे। अब मैं सोच रही हूँ मुझे जैसे ही बायोमोलिक्यूल्स का, मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं एक्चुअली, वो अलग अलग बुक्स में से ना हम नोट कॉपी करते थे। अब मेरे को जैसे ही याद आएगा ना, जैन, क्या नाम था, जैन करके समथिंग बुक है बायोकेमिस्ट्री की, उसमें से बायोमोलिक्यूल, दैट्स लेहनिंजर का इंडियन वर्जन है। जैन, मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा, जैन करके समथिंग, मुझे जैसे ही याद आएगा आई रिमाइंड यू अमर्त्या, ठीक है। नाउ लेट मी कम बैक टू द टॉपिक। MTG बुक इज हाँ मतलब ये बुक्स तो चलो वो दैट स्टूडेंट इज इन BSc ना, ठीक है। अच्छा चलो गाइज लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक नाउ। अच्छा ये सब हमारी इंट्रोडक्शन हो गई, हालचाल बांट लिए हमने अमाइनो एसिड की। लेट्स टॉक। वैसे आई हैव टोट BSc स्टूडेंट्स ऑल्सो अमर्त्या, पता है वो मैंने उनको बायोमोलिक्यूल वाला पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाया था, तो वो 2 मैंने अपने कॉलेज के नोट्स यूज़ कर लिए थे उस टाइम पे। तो प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड गाइस, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन हैं, उन सब में अमाइनो एसिड हैं, और अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। 20 अमाइनो एसिड है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये होता है। सेंटर में होती है कार्बन, फिर इसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है COH फंक्शनल ग्रुप COOH, और एक होता है अमाइनो ग्रुप NH2, फिर ये हाइड्रोजन और ये R ग्रुप। 20 अमाइनो एसिड में या फिर इसके डेरिवेटिव में भी जो ये R ग्रुप होता है ना, ये डिफरेंट होता है। जब हम अमाइनो एसिड लर्न करते हैं तो हम ये R ग्रुप लर्न करते हैं कि सब में R ग्रुप कैसा है, और जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं अमाइनो एसिड की, वो इसी R ग्रुप के बेसिस पे करते हैं। आपको पता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में भी इनका ग्रुप चेंज हो जाता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। नॉर्मल देखें ना, मतलब जैसे हम अमाइनो एसिड को क्या बोलते हैं, इट्स एम्फोटरिक कंपाउंड, आपको पता ही है, जो एसिडिक बेसिक दोनों मतलब उसमें सर्वाइव कर सकता है, एम्फोटरिक कंपाउंड टाइप का। दूसरी चीज़ क्या है गाइस, एक टाइम में जो अमाइनो एसिड है ये नेगेटिव पॉजिटिव आयन कैरी कर सकता है, तो ये COH जो है COO में कन्वर्ट हो जाता है, CO नेगेटिव, और हाइड्रोजन मूव करता है एंड इट फॉर्म NH3 पॉजिटिव, ऐसे। तो ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव, इसको बोलते हैं ज़्विटर आयन, ज़्विटर आयन। सो दिस इज स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड की ये एसिडिक बेसिक मीडियम दोनों में सर्वाइव कर लेता है, एक में पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, एक में नेगेटिव पे, या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसके पास दोनों होंगे, उसको बुलाते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में ना तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा या नेगेटिव में, बैलेंस हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है इसके पास, दैट कंडीशन इज नोन एज ज़्विटर आयन, एंड दैट्स अ वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड। अब दूसरी बात करते हैं अमाइनो एसिड की। जैसा मैंने बोला R ग्रुप सब में डिफरेंट होता है, हमें उन्हीं 20 अमाइनो एसिड को लर्न करना है, उनका R ग्रुप लर्न करना है, और हर एक अमाइनो एसिड का अपना एक सिंबल होता है, एक एब्रीवेशन होती है। जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो उसी सिंबॉलिक फॉर्म में हम उसे लर्न करते हैं। चलो अब हम उस अमाइनो एसिड के बारे में बात करते हैं। अच्छा मैं सोच रही हूँ कुछ रह तो नहीं गया, याद आएगा तो बता दूंगी।
दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, टॉपिक ही ऐसा है। चलो हाँ, अब दूसरी चीज़, जब जैसे पता है वर्ड यूज़ करते हैं पेप्टाइड, प्रोटीन के लिए हम पेप्टाइड वर्ड भी यूज़ करते हैं, बट नॉर्मली पेप्टाइड वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, राइट। तो अब मॉलिक्यूलर वेट कम होता है तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड वर्ड बोल देते हैं। और जो प्रोटीन के अंदर बॉन्ड बनते हैं, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाया, उसे बुलाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब एक अमाइनो एसिड दूसरे के साथ रिएक्ट कैसे करेगा, वो बॉन्ड कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये है एक अमाइनो एसिड, ये है दूसरा अमाइनो एसिड। इसका COH का OH, उसका NH2 का H, ये दोनों रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्शन होती है डिहाइड्रेशन, कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल रिलीज होता है एंड दैट्स अ कंडेंसेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बना दैट इज CONH। वैसे तो इन्होंने यहाँ पे गलत लिखा है, CONH में CO इधर आएगा और H इधर लिखना चाहिए ना, यहाँ नहीं लिखना चाहिए। रीजन बिंग ओरिएंटेशन भी तो मेंटेन करना होता है ना, केमिस्ट्री लेवल पे देखोगे तो। एनीवेज, जो ये COH बॉन्ड है ना गाइज, ये इसको बुलाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। केमिस्ट्री में जहाँ भी पढ़ोगे ना, CONH बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड, प्लीज रिमेंबर इट। दूसरी चीज़, हमने देखा इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18, राइट। मतलब इसका 18 मॉलिक्यूलर वेट कम हो गया। इमेजिन इसका मॉलिक्यूलर वेट है 100, इसका है 100, तो जो ये बनेगा ना स्ट्रक्चर, इसका -18 कर देना, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गया। कार्बोहाइड्रेट में भी यही रिएक्शन होती है और ये पेपर में आ जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब दो यहाँ अमाइनो एसिड बने हैं, इसको बुलाते हैं डाईपेप्टाइड। 3 होंगे तो ट्राईपेप्टाइड, इसीलिए पॉलीपेप्टाइड मतलब लॉन्गर चेन, प्रोटीन मतलब वेरी कॉम्प्लेक्स लॉन्ग चेन। सो दिस इज हाउ अमाइनो एसिड रिएक्ट विद ईच अदर एंड दिस इज व्हाट द पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा अमाइनो एसिड के बारे में। चलो लर्न करते हैं। इफ यू आर डन, लेट्स मूव। मुझे हर बार ना आपके कमेंट्स भी पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। अमाइनो एसिड के दर्शन कर लो और मैं तुम्हारे कमेंट देखती हूँ। अच्छा लोग, यहाँ मैं NCERT फिंगर टिप्स, हाँ यार जितना हो पाएगा ना मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ अपने दिमाग में डालो, जो बायो सब्जेक्ट है इज़ फुल ऑफ फैक्ट। हम बोलते हैं बायो में रट्टा मारना है, ये मारना है। केमिस्ट्री फिजिक्स में चलते हैं पूरे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। बायो इज़ फुल ऑफ फैक्ट। अब फैक्ट को लर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इट्स अ फैक्ट, यू हैव टू लर्न इट। तो उसके लिए निमोनिक्स, टेबल, गाना गा लो, हाईलाइट कर दो, ये सब ट्रिक्स होती है ना। मैम आप नीट के लिए पढ़ा रही, यस बुलबुल, मैं नीट के लिए पढ़ा रही हूँ और ये टॉपिक वैसे BSc में भी है, तो आप अगर BSc भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं नीट के लिए पढ़ा रही हूँ। आई हैव टू टॉक टू यू पर्सनली, इज इट फॉर मी? शगुफ्ता, सॉरी फॉर व्हाट? यार तुम अपने ही हालचाल बांट रही हो, मैं पढ़ा रही हूँ। आपकी आंखें, ओह गॉड। मैम कैन यू टेल मी अबाउट हाउ डीनेचुरेशन रिलेटेड टू प्रोटीन? हाँ, मैं डीनेचुरेशन जब आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर पे आऊँगी ना आपको तब मेंशन करूँगी, प्लीज़ याद दिला देना उस टाइम पे। सॉरी गाइस, सॉरी कि कहाँ से आया, सॉरी। चलो गाइस, आई एम कंटिन्यूइंग ना, हो गया हमारा, बहुत सारी बातें कर ली हैं, मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलो गाइस लेट्स कंटिन्यू। तो तुमने स्क्रीन पे अमाइनो एसिड देख लिए, ठीक है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, मैं माइक ही म्यूट कर देती हूँ, एक सेकंड। कभी कभी हो जाती हैं अजीब सी चीज़ें। चलो भाई, हाँ भाई अब सुनो मेरी बात। ये है 20 अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड ऐसे हैं कि बच्चे देखे घबरा जाते हैं उससे, क्या अरे यार क्या कॉम्प्लेक्स। तो इसके लिए बेस्ट तरीका जो मैंने किया था, हमने मतलब एक ऐसे फ्लो चार्ट बनाया, सिर्फ आर ग्रुप लिख दिए, आर ग्रुप एब्रीवेशन सिंबल, आर ग्रुप एब्रीवेशन सिंबल, तो टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। और एब्रीवेशन सिंबल कंपैरेटिवली लर्न करने बहुत ही ईजी होते हैं, बस आर ग्रुप के लिए आपको थोड़ा उसको कैटेगराइज करके लर्न करना होता है। देखो अब यहाँ पे जो येलो येलो हाईलाइट है ये आर ग्रुप है। अगर पिक्चर नहीं दिख रही है डू नॉट वरी, मैं इसका थोड़ा जूम इफेक्ट करके भी दिखाऊंगी आपको, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में जूम करके। हाँ, तो देयर आर 20 अमाइनो एसिड। यहाँ पे क्लासिफिकेशन मैंने आर ग्रुप के हिसाब से करी है,
नॉन मैंने नहीं करी, इट इज फैक्ट. नॉन पोलर, पोलर, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. नॉन पोलर और पोलर का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे हमें पता है कि पोल कब बनता है, जब एक अगला जो मॉलिक्यूल, अगला जो एलिमेंट है, अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसकी वजह से पोल्स बनेंगे ना. तो इसका जो आर ग्रुप है वो इस तरीके से है कि वो है पोलर, क्रिएट कर रहा है. वो नॉन पोलर में नहीं है ऐसा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में आयोनिक फॉर्म में है. वो कौन होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो फंक्शनल ग्रुप है यही तो होंगे पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग वी हैव क्लासिफाइड इट. देखो अच्छा काम करती हूँ, मैं नेक्स्ट पे चलती हूँ. ये है नॉन पोलर और पॉजिटिव चार्ज. नॉन पोलर में आता है ग्लाइसिन, एलिनिन. गाइस नाम भी बता रही हूँ, सिंबल भी बता रही हूँ, एब्रीवेशन भी बता रही हूँ, और 20 अमाइनो एसिड आपको लर्न करने हैं नीट पेपर के लिए. करने हैं मतलब करने हैं, सिंबल भी लर्न करने हैं और एब्रीवेशन भी. और हर कोई एब्रीवेशन की भाषा में ही बात करता है, इस चीज़ को समझ लो. तो ग्लाइसिन का है GLY, ग्लाइ जी. एलिनिन का एला ए. जो ग्लाइ है ये है एब्रीवेशन और जी है ये है सिंबल. तो ये दो अलग चीज़ें हैं. वैलिन, सिस्टीन, प्रोलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन, लाइसिन, एस्पारजिन, हिस्टिडिन. अब इसमें क्या है, एलेनिन में ALA. अब देखो फंक्शनल ग्रुप, इसमें ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, इसका आर ग्रुप होता है H. उसके बाद एलेनिन में CH3 है, वेलिन में CH3, CH मतलब CH कनेक्टेड टू CH3, CH3. सिस्टीन में CH2SH. प्यार से देख लो सारों के आर ग्रुप को, बहुत इजी है, प्यार से देख लो. इसके अंदर ये देखो, प्यार से देखो. पहले मैं पानी पी लूँ फिर बोलती हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा आइडेंटिफाई कराती हूँ. सही से दिख नहीं रहा, बट मैंने अभी नेक्स्ट इमेज करी है तो दिख रहा होगा. आपको पता है गाइस, जो हिस्टाडिन है ना, इसकी जो रिंग है इसको बुलाते हैं इमिडाजोल रिंग. IMIDAZOLE, इमिडाजोल रिंग. विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड हैज इमिडाजोल रिंग? हिस्टाडिन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग सल्फर इन इट्स आर ग्रुप? सिस्टीन इज हैविंग सल्फर, मिथ्योनिन इज हैविंग सल्फर. तो आपको उस आर ग्रुप को लर्न ही नहीं करना, उसे क्लासीफाई भी करना है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज हैविंग बेंजीन रिंग? फिनाइल एलेनिन. और कैसे आइडेंटिफाई करोगे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैविंग एनी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप इन आर ग्रुप? वेलिन, एलेनिन नहीं है ना. CH3 सिंपल है, कोई स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप नहीं है आर ग्रुप में. ठीक है. नाउ लेट मी शो यू नेक्स्ट पोलर एंड नेगेटिव चार्ज. पोलर में आता है सीरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, एस्पाराजिन, ग्लूटामिन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड. तो सीरीन में है CH2OH, मतलब दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप जिसे बुलाते हैं. ठीक है. सीरीन का ये है SER, सिंबल है S. थ्रियोनिन में भी अल्कोहल है, THRT, CH3 कनेक्टेड टू CH3 एंड OH. टायरोसिन में है, ये देख रहे हो, अल्कोहल, CH2 कनेक्टेड है ऊपर से. टायरोसिन में एरोमेटिक क्या बोलते हैं उसको, बेंजीन रिंग. अच्छा, उसके बाद एस्पैराजिन. एस्पैराजिन में है CH3CONH2. एस्पैराजिन में CONH2 है, फिर से पेप्टाइड वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो एस्पैराजिन. ऐसे ही ग्लूटामिन में सेम, तो अमीन ग्रुप है. ठीक है. अच्छा, इसके बाद नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव लिया है तो CO नेगेटिव, CO नेगेटिव. तो इसमें दो हैं, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ASP एंड GLU. मैं पिछली स्लाइड पे, अगली स्लाइड पे फिर से ले जाऊंगी. गाइस ऑल यू हैव टू लर्न इज लुक एट ऑल आर ग्रुप. रेखाश्री, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. नो स्ट्रक्चर ज़रूरी नहीं है. नहीं, मेरा काम आपको बताना है ना. स्ट्रक्चर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है मुफ्ती, बट पेपर में जो आता है ना वो आर ग्रुप के बेसिस पे आता है. जैसे मैंने बोला ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग सल्फर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो वो आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए. तो क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट नहीं आएगा स्ट्रक्चर बेसिस पे, लेकिन वो इसी तरीके से आएगा जहां आर ग्रुप के बारे में पूछा गया होगा. समझे?
मैं पिछले वाला दोबारा से दिखा देती हूँ, अगर आपको लगता है मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया उस पर, आपको टाइम नहीं दिया तो सिंबल ये है ना, ग्लाइसिन हो गया एलेनिन, वेलिन का वी, वेलिन का वी, सिस्टीन का सी, प्रोलिन का PRO, ल्यूसिन का ल्यू एंड L, आइसोल्यूसिन में ILE और I, मिथ्योनिन में MET, ट्रिप्टोफेन में TRP W। देखो इसका थोड़ा सिंबल डिफरेंट है तो प्लीज़ याद कर लेना। फिनाइल एलिन में F सिंबल, हिस्टिडिन में H, लाइसिन में LYCK, थोड़े थोड़े डिफरेंट वाले भी ARG में आ रहे हैं। तो दिस आइडेंटिफिकेशन यू हैव टू डू, ठीक है गाइस। तो अभी हम अमाइनो एसिड को थोड़ा सा कंटिन्यू रखेंगे, हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अब। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट यू सी इज क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड आई हैव मेड इट ऑन द बेसिस ऑफ दैट पॉइंट दैट आई वाज सेइंग ना कि नीट में इस तरीके से आते हैं, तो ये लर्न कर लेना। हाय गुड इवनिंग तेजस, हाउ आर यू? हाय मीना, बहुत खुश हो। हाउ कैन आई रिमेंबर इट ईजिली मैम? बच्चे आपको इसके लिए टेबल बनाना होगा और आर ग्रुप लर्न करना होगा। जब देखो एक्चुअली में क्या होता है, हम कभी कभी निमोनिक बनाते हैं। मैंने एक टेबल बनाई, मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने एक टेबल बनाई, यहाँ पे अमाइनो एसिड लिख दिए सारे, फिर उसके बाद यहाँ पे आर ग्रुप लिख दिए सारे, फिर उसके बाद उसकी एब्रीवेशन, फिर सिंबल। तो वो जो आर ग्रुप है ना, वो शुरू से सीक्वेंस में लिखना। ग्लाइसिन में H है, वेलिन है, ल्यूसिन है, उसमें CH3 में वो जुड़ता चला जाएगा, फिर सिस्टीन में सल्फर आ जाएगा, मिथ्योनिन में फिर से सल्फर बट एक कार्बन एक्स्ट्रा है, टायरोसिन में OH ग्रुप आ जाएगा। तो दैट वे यू हैव टू जस्ट राइट इट। सिर्फ आर ग्रुप लिखना है और कुछ नहीं लिखना, क्योंकि बाकी स्ट्रक्चर तो सेम है, समझे। और जो क्लासिफिकेशन, और दूसरी चीज़, उस आर ग्रुप को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, वो नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, कैसा है। जैसे मैंने स्क्रीन पे क्लासिफिकेशन लिखी है। सबसे पहले सिंपल अमाइनो एसिड। सिंपल अमाइनो एसिड क्या होता है? सिंपल है, उसके अंदर कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं है, नॉन पोलर टाइप का। तो उसमें आएगा ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन एंड ल्यूसिन, बताया था मैंने आपको। उसके बाद है हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड। हाइड्रोक्सी मतलब अल्कोहल वाला जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये है थ्रियोनिन, सीरीन, टायरोसिन भी था, है ना। अच्छा, इसके बाद है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सिस्टीन एंड मिथाइनिन, मिथ्योनिन। आपको पता है सिस्टीन, सिस्टीन, इन दोनों को मिला दें तो ये बन जाता है डाइपेप्टाइड, इसको बुलाते हैं सिस्टाइन। सिस्टाइन, दिस इज ऑल्सो अमाइनो एसिड। सिस्टाइन इज ऑल्सो अमाइनो एसिड जो सल्फर कंटेनिंग है। पेपर में सिस्टीन आया, सिस्टाइन आया, तो अच्छा चलो ठीक है। लेट्स डू नेक्स्ट बेसिक अमाइनो एसिड। गाइस बेसिक अमाइनो एसिड क्या होगा? व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड? थिंक अबाउट इट। बेसिक अमाइनो एसिड होगा जिसके अंदर जो आर ग्रुप है उसमें NH2 प्रेजेंट है। आर ग्रुप में, वैसे तो NH2 सब में होता है, आर ग्रुप में तो बेसिक अमाइनो एसिड, उसमें बेसिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। फिर लाइसिन एंड अर्जिनिन। ऐसे ही एसिडिक, एसिडिक होगा जिसमें आर ग्रुप में COOH ग्रुप प्रेजेंट है। आर ग्रुप में अगेन एग्जाम्पल एस्पार्टिन और ग्लूटामिन, ठीक है। एस्पाराजिन, सॉरी एस्पाराजिन एंड नहीं ठीक है एस्पार्टिन, एस्पार्टिक एसिड होता है ना, मैंने नाम गलत बोल दिया, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिन, ठीक है। उसके बाद है एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग वाला, एरोमेटिक रिंग बुलाते हैं उसे। तो फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। टायरोसिन में OH ग्रुप भी होता है ना, फिनोल ग्रुप, तो उसको वहाँ पे भी लिख सकते हो, OH तो है ही, यहाँ पे भी लिख सकते हो क्योंकि एरोमेटिक रिंग है। हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड क्या होगा? हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड, हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड देखो, एक होता है साइक्लिक, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक रिंग का मतलब होता है कि आर ग्रुप में एक रिंग प्रेजेंट है, बट उस रिंग में देयर इज वन एटम विच इज अदर देन कार्बन। जैसे कि वो था ना इमिडाजोल, जैसे मान लो ये है एक रिंग, इसके अंदर यहाँ नाइट्रोजन है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक है, तो नॉर्मल एरोमेटिक वाला नहीं है, तो इस वो है, हाँ एल्काइल रिंग वाला जो हम पढ़ते थे, साइक्लोएल्केन वाला, हाँ। तो ये हिस्टिडिन और प्रोलिन इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। सो गाइस दिस इज अ क्लासिफिकेशन। इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो, MCQ पक्का आ सकता है ऐसे बेसिस पे। मैं साइड हो रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आई वॉन्ट यू टू सेव इट। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। 1 2 3 4 5 हो गया होगा अब तक।
चलो भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड. So guys, now next thing. Next is classification. There's one more classification of amino acid. So one more classification में क्या है? As you can see on the screen, amino acid there are two type: essential amino acid, non-essential amino acid and semi-essential. Essential amino acid का मतलब होता है कि हमारी बॉडी नहीं बना रही है उसे. Our body is not making it and we need to take it in our diet. And non-essential means our body is making it in abundant amount and we don't require it in our diet. If you are taking it, doesn't matter. Semi-essential amino acid. Semi-essential amino acids are the one that our body is making but not in sufficient amount. So we have to take it in diet. Body बना तो रही है but not in enough amount. So now this is also very important topic. Definition easy है but example आपको लर्न करने पड़ेंगे. पेपर में आता है, नीट के पेपर में, which one of the following is non-essential, which one of the following is essential. तो एसेंशियल अमाइनो एसिड है आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन. अब इसको लर्न करने के लिए तुम देखो, इसके लिए मैंने निमोनिक नहीं बनाया बट आप प्यार से बना सकते हो. कैसे? सिंबल की फॉर्म, IL मिथियोनिन, सॉरी इसमें सिंबल एक गलत लिख दिया मैंने, मिथियोनिन है, P है, तो इसका कुछ सेंटेंस बना लो ऐसे करके, लर्न हो जाएगा. ठीक है गाइस. अच्छा, तो आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, ये है एसेंशियल. नॉन एसेंशियल, एलेनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, सॉरी ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरीन एंड टायरोसिन. सेमी एसेंशियल, हिस्टडीन एंड अर्जिनिन. सेमी एसेंशियल का तो मुझे क्वेश्चन याद है, नीट में मैंने खुद देखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज. तो दो है बस, इसको तो कुछ नहीं है ना, हिस्टडीन एंड अर्जिनिन. So guys, this is next classification. I mean this is one classification. Now I'll tell you one more. अच्छा ठीक है, अभी प्रोटीन पे चलते हैं. हमारा अमाइनो एसिड हो गया, अब हम थोड़ा प्रोटीन पे बढ़ेंगे. Let me read your comments. Math easy, hi math easy. इतने खुश. So guys, now I am going to move toward the protein. हमने अमाइनो एसिड की कहानी पढ़ ली है. अमाइनो एसिड कैसे दिखते हैं, कैसा होता है, और ये मिलके बनाते हैं प्रोटीन. देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड फॉर्मिंग अप अ प्रोटीन. बट एक बात सोचो, हर एक अमाइनो एसिड का आर ग्रुप डिफरेंट है. जब एक चेन बनेगी अमाइनो एसिड की और सबके आर ग्रुप आपस में भिड़ेंगे तो रिएक्ट तो करेंगे. तो उन्हीं रिएक्शन की वजह से प्रोटीन के अपनी कुछ शेप्स बन जाती हैं, जिसे हमने कैटेगराइज किया. हम उसे कन्फिग्रेशन वर्ड भी देते हैं. हमने उसे कैटेगराइज कर दिया 4 कैटेगरीज में. So the next topic is that categorization of the protein on the basis of its structure, which is formed due to its R group, which is formed due to its different amino acids. Let's talk about that topic. So next is this protein structure. If we study protein structure, there are mainly 4 types of structure that we learn: primary structure, secondary structure, tertiary and quaternary structure. प्यार से देख लो डायग्राम को. प्राइमरी में सिंपल अमाइनो एसिड की चेन बनी. सेकेंडरी में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई क्योंकि अमाइनो एसिड आपस में बॉन्ड बना रहे हैं. टर्शरी में थोड़ा ज़्यादा बॉन्ड बना रहे हैं. क्वार्टनरी में तो भयंकर ही बॉन्ड बना रहे हैं. अब वो कौन से बॉन्ड है, कैसे बनते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी में या नेचर में, इन प्रोटीन के एग्जाम्पल्स क्या हैं, वो सब हम पढ़ने वाले हैं. इन्हीं स्ट्रक्चर के बारे में एक बार वन बाय एक आई वाज सेइंग, हम थोड़ी स्टडी करने वाले हैं. ठीक है. सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द प्राइमरी स्ट्रक्चर. एनसीईआरटी में कितने नंबर का आता है बायोमॉलिक्यूल से? नीट में बच्चे, नीट में आ जाता है. 4 क्वेश्चन मिनिमम लेके चलो तुम. तो इसीलिए आशीष बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. हाँ, तो ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर इट्स अ सिंपल चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स. मतलब कहने का ये है, अमाइनो एसिड की चेन है तो इट हैज ओनली वन बॉन्ड विच इज पेप्टाइड बॉन्ड. इसीलिए इट्स अ पॉलीपेप्टाइड कि दिस इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन. आप उसमें कोई बॉन्ड नहीं बन रहा. ये अमाइनो एसिड के सब यूनिट्स हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर का. ठीक है गाइस. तो सिंपल कुछ नहीं, एक तरफ NH3 फ्री ग्रुप होगा, एक तरफ COH होगा. सीधी सी बात है. प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल दूं, जैसे हमारी बॉडी में हार्मोन होते हैं, काफ़ी सारे हार्मोन है. वासोप्रेसिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, इंसुलिन हो गया, ये सब प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं.
सिंपल नहीं, इंसुलिन नहीं है, सॉरी, इंसुलिन में सल्फर डाइसल्फाइड ब्रिज होता है। ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन, उनमें भी डाइसल्फाइड ब्रिज होता है। हाँ ठीक है, उसको छोड़ दो, इंसुलिन ये सब लर्न करने की जरूरत नहीं है। इंसुलिन इज नॉट, क्योंकि उसमें डाइसल्फाइड ब्रिज होता है। इट्स सिंपल, देयर आर मेनी अदर प्रोटीन प्रेजेंट, TSH है, और भी बॉडी में पेप्टाइड प्रोटीन जो सिंपली हैं वो सब हैं इसमें, अदर देन द वन दैट आई मेंशन्ड। अच्छा, सो दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर गाइस, तो आई थिंक दैट्स क्लियर। पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हाय सक्षम, अरे सक्षम गौतम, तुम कैसे आए? क्या तुम वही हो? हाँ, बाकी लोग सोचेंगे कौन हो। इट्स, आई थिंक इट्स माई स्टूडेंट दैट आई टीच। मैम कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अभी ज्वाइन किया हरिंदर आपने? एक बात बताओ हरजिंदर, अब आपका डाउट क्या है मुझसे स्पेसिफिकली वो पूछो, फिर समझाती हूँ मैं। अभी नहीं? अरे यार तुम, मैं पता क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम ना अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर देख के घबरा गए और कुछ नहीं, और उसकी वजह से सब तुम्हारा मतलब कंफ्यूजन हो गई है। अमाइनो एसिड में कुछ नहीं, अभी के लिए ये याद रखो कि आर ग्रुप लर्न करना है। मैं ये नहीं बोल रही कि जब क्लास चल रही है तभी के तभी साथ साथ याद करो, बाद में लर्न कर लेना उसे, लेकिन अभी जो चल रहा है उसको समझो। मैंने बताया प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें अमाइनो एसिड की सिंपल सीक्वेंस है, ये अमाइनो एसिड है, इसकी चेन बन रही है, पेप्टाइड बॉन्ड है, बस प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, खत्म। मतलब और क्या डाउट है बताओ मुझे। ओके थैंक यू। हाँ उसको छोड़ दो, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना और अमाइनो एसिड की नेट पे सर्च कर लेना, इमेजेस अलग से अच्छे से देख लेना। ज़रूरी नहीं है सेशन में देखना, आपके पास बुक्स भी है, प्यार से देखो। अभी हमारा काम है जो चल रहा है उसको समझ लो, ताकि जब तुम उसे घर पे दोबारा पढ़ो तो तुम्हें समझ आ जाए कि अच्छा ये बताया था। हाय लता। अच्छा सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर नाउ। अब सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी देख जैसे डर जाते हैं बच्चे। सेकेंडरी में क्या होता है कि अब अमाइनो एसिड एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसके अंदर अमाइनो एसिड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आर ग्रुप डिफरेंट है, किसी में वेलिन है, आइसोल्यूसिन है, पोलर हो गया, पॉजिटिव चार्ज, आपस में थोड़ा इंटरेक्शन हो जाएगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव वाला मैं थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर में बताऊंगी, लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है, अदर देन पेप्टाइड बॉन्ड वन मोर बॉन्ड इज फाउंड। अब इसमें आर ग्रुप इंटरेक्ट कर रहे हैं बट एक बॉन्ड बन रहा है बस, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसमें दो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड तो सिंपल अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में, ये देखो ये स्ट्रक्चर बनाया इन्होंने, सिंपल अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है। अब उनके बीच में और हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीथ। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीथ में क्या डिफरेंस होता है कि मान लो, सॉरी मिस्टर इंडिया में ऑफिस का सामान यूज कर रही हूँ, देखो मान लो ये अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है, राइट। तो अल्फा हेलिक्स में क्या होगा, एक मिनट ना, अल्फा हेलिक्स में क्या होगा, इस अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में ऐसे 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 वो बन जाएंगे कॉइल्स, ऐसे कॉइल्स बन जाएंगे, ऐसे देख रहे हो, ऐसे, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, इधर का आर ग्रुप उधर आर ग्रुप के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, ऐसे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो ये अल्फा हेलिक्स हो गया। अब बीटा प्लीटेड शीथ क्या होता है, बीटा प्लीटेड शीथ में एक अमाइनो एसिड सीक्वेंस नहीं आती, उसमें आती 3-4। अब मेरे पास 3-4 वायर्स नहीं है, इमेजिन 3-4 वायर्स हैं ऐसे लाइन में, 1 2 3, ठीक है। अब वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, इस वायर का हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ बन गया, इसका इसके साथ बन गया, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, फर्क नहीं पड़ता। तो बीटा प्लीटेड शीथ में एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड सीक्वेंस अट्रैक्ट कर रही है आपस में और बनता हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। देखो अब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड में एक हाइड्रोजन होता है और वो बॉन्ड बनाता है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, एक सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और हाइड्रोजन बेचारा सारे इलेक्ट्रॉन दे देता है, यही होता है ना, बट होता हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड किस में बनेगा, CONH CONH, इस ग्रुप का CO उस ग्रुप का NH, पेप्टाइड बॉन्ड की बात नहीं कर रही मैं, इस R ग्रुप का CO उधर का NH, ये देखो ये अल्फा हेलिक्स है, इसके बीच में CONH ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। तो एक स्टैंड अगर सिंपल पेपर में आ गया बोर्ड एग्जाम में, ऐसे ऐसे करना और बीच में CONH हाइड्रोजन बॉन्ड बना देना, अल्फा हेलिक्स। अच्छा फिर आता है बीटा प्लीटेड शीथ। बीटा प्लीटेड शीथ में ये लगाओ, जैसे ये एक सीक्वेंस है अमाइनो एसिड की, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये 3 स्टैंड आपस में आई और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया ऐसे,
कुछ प्लीटेड शीट बन गई ना, ऐसी प्लीटेड शीट, तो दैट इज द स्ट्रक्चर। तो ये बनाया इन्होंने, सिंपल स्ट्रक्चर भी ऐसे ऐसे लाइन लगाई, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा दिया, सिंपल, दैट सेकेंडरी स्ट्रक्चर गाइस। अब मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। अल्फा का एग्जांपल है मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन। कहाँ लिखूँ? अल्फा है ना, ये अल्फा, इसका एग्जांपल है मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन। याद हो तो ये दोनों मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन बॉडी में मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। हमारी जो मसल्स हैं इसके अंदर ये प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। अच्छा, और जो बीटा प्लेटेड शीथ है ना, ये इसका एग्जांपल है केराटिन। एनिमल्स में हमारे जो हेयर होते हैं वो केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं ना, तो इसका है केराटिन। अरे मिस्टर इंडिया क्या हो गया? कुछ तो हुआ, छोड़ो, चल रहा है केराटिन। और एक होता है फिब्रोइन। एक मिनट, फिब्रियोन होता था, फिब्रोइन होता था, सिल्क प्रोटीन बुलाते हैं इसको, एनिमल्स में होता है ये, दैट इज ऑल्सो सेकेंडरी बीटा प्लीटेड शीथ स्ट्रक्चर। ठीक है गाइस, एवरीथिंग क्लियर? दैट्स अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नाउ लेट मी रीड योर कमेंट्स एंड देन आई टॉक अबाउट द टर्शियरी स्ट्रक्चर। 12th केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल क्या सेम है ऑलमोस्ट, वो थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट डिटेल में उसका, मैंने ना 12th में पढ़ाया है बच्चों को आशीष, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट कंपैरेटिवली डिटेल में है, तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि वो पढ़ सकते हो वहाँ से ना कार्बोहाइड्रेट। मैम डीनेचुरेशन रिलेटेड टू प्रोटीन, अच्छा रखा रेखाश्री। डीनेचुरेशन में चलो अभी बता देती हूँ। एक्चुअली क्या होता है डीनेचुरेशन में कि मान लो प्रोटीन है, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो बढ़ाते ही उसमें जो ये बॉन्ड बनते हैं ना अमीनो एसिड में, ये ब्रेक होने लग जाते हैं, उसको बुलाते हैं डीनेचुरेशन। बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, वो प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से प्राइमरी क्या बनेगा बाद में नहीं पता। अब जैसे घर में वो अंडा गर्म करते हैं तो उसका डीनेचुरेशन नहीं होता, टेम्परेचर चेंज करके स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, दैट्स व्हाट वी ईट। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा चैप्टर, बायोमोलिक्यूल्स। अरे ये बायोमोलिक्यूल्स है बुद्धू, थैंक यू लता सो स्वीट। रिपीट कीजिए प्लीज़। गौरव क्या डाउट था जो मैं रिपीट करूं? पूछ लो जल्दी। आगे बढ़ रही हूँ मैं टर्शरी स्ट्रक्चर पे, रुको पानी पी लेती हूँ पहले, तुम देख लो प्यार से सेकेंडरी स्ट्रक्चर। लेट मी क्लियर द स्क्रीन नाउ। सो गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टर्शरी स्ट्रक्चर। मैंने इस डायग्राम में क्या किया, सिर्फ टर्शरी स्ट्रक्चर के बॉन्ड दिखाए हैं, आपको भी यही करना है, बोर्ड एग्जाम में आ जाए या एमसीक्यू में आ जाए इनडायरेक्टली कि कौन सा क्या ये क्या स्ट्रक्चर है। तो एक्चुअली टर्शरी में अब पहले में था सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड, सेकेंडरी में पेप्टाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ गया। टर्शरी में हाइड्रोजन बॉन्ड